Good morning, student. Today I will start a new chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. In this chapter, we will discuss different type of concepts of macroeconomics. For example, transfer income, factor income, stock, flow, citizenship, etc. Okay. So the first topic is factor income and transfer income. Actually, factor income is that income which is received by the factors of production after providing their services in the form of wages, rent, interest and profit. It is received only by the factors of production. Okay, so factor income is that income which is received by the factors of production for providing factor services in the production process. For example, wages, profit, rent, interest, etc. Okay. We can explain with the help of an example. A worker working 5 hours in any particular factory, after providing his services, he received wages. This wages is known as factor income for that particular worker. So factor income is that income which is received by factors of production like land, labor, capital, entrepreneur after providing their productive services in the production process. Okay, it is known as factor income. Factor income is also known as factor payment. The most important thing is that factor income is included in the national income. When Central Statistical Organization calculate national income of our country, then this organization include factor income in the calculation of national income. Actually, national income can be calculated by 3 methods. The first method is expenditure method, the second method is income method, and the third method is value added method. If you want to calculate national income by income method, in the calculation of national income by income method, we include factor income in the calculation of national income. Okay. So factor income is that income which is received by the factors of production like land, labor, capital, entrepreneur for their productive services in the production process. For example, labor receive wages, entrepreneur receive profit, capital receive interest. These wages, profit, interest, rent are the factor income which are received by the factors of production for their services. Okay. Now your next concept is transfer income. Transfer income is that income which is received without providing any productive services. For example, we receive scholarship, pension, unemployment allowances. These are the example of transfer income. ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बगैर सर्विस प्रोवाइड किए आप रिसीव कर रहे हैं.
कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, कहीं जॉब नहीं कर रहे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं, वो इनकम क्या कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। कोई पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद वो पेंशन रिसीव करता है, वो पेंशन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो रिटायर होने के बाद वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन पेंशन रिसीव कर रहे हैं, उन्हें इनकम हो रही है, वो इनकम जो पेंशन है वो ट्रांसफर इनकम में आएगी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट जो लोग अनएम्प्लॉय होते हैं उनको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करें। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी ट्रांसफर इनकम के अंदर आता है। इसी तरह से स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं, वो स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर इनकम के अंदर इंक्लूड है। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बगैर सर्विस प्रोवाइड किए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन रिसीव करता है। ट्रांसफर इनकम जरूरी नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है एज ए वर्कर, वो भी ट्रांसफर इनकम रिसीव कर सकता है। फैक्टर इनकम सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है वो कोई भी हाउस होल्ड जो है वो रिसीव कर सकता है। ट्रांसफर जो इनकम है उसमें एक चीज और है कि ट्रांसफर इनकम सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि कंट्री के अंदर रिसीव करें, दूसरी कंट्री से भी रिसीव कर सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रही है तो ये भी ट्रांसफर इनकम है। दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हमारे कंट्री के जो सिटीजन हैं उनको हेल्प करने के लिए कुछ पैसा दे रही है, वो भी ट्रांसफर इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। अगर एक कंट्री में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है और दूसरी कंट्री के लोग या दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लोगों को अगर पैसा दे रही है सिर्फ हेल्प करने के लिए, तो वो भी ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रांसफर इनकम प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रिसीव नहीं हो रही है। ट्रांसफर इनकम इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांसफर इनकम में हम कोई सर्विस प्रोवाइड करके रिसीव नहीं कर रहे, कोई कुछ प्रोड्यूस करके रिसीव नहीं कर रहे, कोई कुछ सेल करके रिसीव नहीं कर रहे। इसलिए ट्रांसफर इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर इनकम को हम यूनिलेटरल इनकम भी कहते हैं। ये ट्रांसफर इनकम वन साइडेड कंसेप्ट है। वन साइडेड कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि हम पेंशन रिसीव कर रहे हैं, स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये वन साइडेड हुआ। हम सिर्फ ओनली अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये वन साइडेड हुआ। फैक्टर इनकम टू साइडेड कंसेप्ट है, क्योंकि फैक्टर इनकम में पहले हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद अमाउंट रिसीव करते हैं। पहले हम कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वेजेस रिसीव कर रहे हैं, तो ये टू साइडेड कंसेप्ट हुआ, क्योंकि पहले हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वन साइड हुआ, फिर अमाउंट रिसीव करते हैं, ये सेकंड साइड होगी। इसलिए इस तरह से फैक्टर इनकम टू साइडेड कंसेप्ट है, लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है वो वन साइडेड कंसेप्ट है। ओके। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रिसीव करते हैं, जैसे वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रेंट है, एक्सेट्रा। ओके। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। अब हम डिस्कस करेंगे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश है वो है मीनिंग।
As you know, factor income is that income which is received after providing services in the production process. Whereas transfer income is that income which is received without providing services. Without providing services. Is the main difference. फैक्टर इनकम सर्विस प्रोवाइड करने के बाद रिसीव की जाती है और ट्रांसफर इनकम बगैर सर्विस प्रोवाइड किए रिसीव कर सकते हैं. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश नेशनल इनकम. फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट. एक्चुअली फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट. अर्निंग कंसेप्ट मीन्स इट इज two-sided concept. We provide services. After that, we earn income in the form of wages. So it is earning concept. But transfer income is receive concept, because in transfer income we only receive the income in the form of pension, scholarship. So transfer income is received concept. It is, and factor income is earning concept. Transfer income is one-sided concept, and factor income is two-sided concept. Next point of distinguish is C. Factor income is received by the factors of production only, and transfer income is received by the household and the government. अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही रिसीव करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इसके अलावा कोई और फैक्टर इनकम रिसीव नहीं कर सकता. लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है वो कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है. अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल देकर उसको एक्सप्लेन करते हैं. सपोज कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो रिटायर हो गए. जब वो रिटायर हो गए तो इट मीन्स वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है. अब वो जॉब करने नहीं जा रहे, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं और वो पेंशन जो रिसीव कर रहे हैं. तो वो पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद पेंशन वो रिसीव कर रहे हैं. इस तरह से अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो कहीं जॉब नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हमारे कंट्री के सिटीजन को अगर हेल्प करने के लिए पैसे दे रही है और हमारी कंट्री का सिटीजन दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से पैसा रिसीव कर रहा है बगैर सर्विस प्रोवाइड किए, तो वो भी फैक्टर वो ट्रांसफर इनकम में आती है हाउस होल्ड. इसी तरह से ऐसा भी होता है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से पैसा रिसीव करती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट रिसीव एड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका. इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर इनकम. अमेरिका की गवर्नमेंट हर साल इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए करोड़ों डॉलर देती है एड के फॉर्म में, और वो इंडियन गवर्नमेंट अगर वापस करेगी ना उसको इंटरेस्ट देती है, सिर्फ हेल्प करने के लिए देती है. तो एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, वो भी किस में आएगा? ट्रांसफर इनकम में आएगा. नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम आर रेंट, wages, profit and interest. The examples of transfer income is pension, scholarship, unemployment allowances. Okay? तो दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फैक्टर इनकम सर्विस प्रोवाइड करने के बाद रिसीव करते हैं,
ट्रांसफर इनकम बगैर सर्विस प्रोवाइड के रिसीव करते हैं। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट है, टू साइडेड कंसेप्ट है। ट्रांसफर इनकम रिसीव कंसेप्ट है, वन साइडेड कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही रिसीव करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसके अलावा और कोई नहीं। ट्रांसफर इनकम कोई भी हाउस होल्ड या गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी और लोग रिसीव कर सकते हैं। फैक्टर इनकम की एग्जाम्पल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम की एग्जाम्पल है पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ओके, सो इट इज अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। In next video